words. Imagine a world without language. Can you imagine a world without language? If there is no any language in the world, so how can we imagine a world without a language? Can you imagine a world without languages? Is there any world which have no languages? Shivani? No, ma'am. No. All humans speaks at least one language. So poet is telling to us that all humans speak at least one language in the world. So how the world is that? कैसी दुनिया होगी जहाँ पे सारे लोग एक ही लैंग्वेज में बातें करते होते, तो दुनिया कैसी होती? The words we speak bring out our thoughts. वर्ड्स जो हम जो प्रोनाउंस करते हैं या फिर बोलते हैं, दैट ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं उसे बाहर लाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। ओके, तो ये जो पोएम है यहाँ पे दी गई वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड्स की पोएम है तो मैंने भी यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं। यू कैन सी ओवर हियर स्माइल। तो स्माइल को अगर आप उल्टा करके देखो तो भी वो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, SMILE, स्माइल, है ना? And the another word that I have written over here, it is I. The oldest and the shortest word. I is the oldest and shortest word. And the another word that I have written here, smile. That we have, if we can see in mirror, then after it is also looks things like smile. No changes you can see, but ऐसे अगर उल्टा करके देखो तो भी ये स्माइल ही दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है आप ढूंढ सकते हो कि जिसको हम उल्टा करके देखें तो भी सेम ही लगेंगे। ओके, तो because of that this poem is dependent on words, so I have also written here two words, that is something new. स्माइल जो है वो भी उल्टा करके देखो तो स्माइल ही पढ़ा जाता है, और आई जो है सबसे ओल्डेस्ट है एंड शॉर्टेस्ट वर्ड है। ओके, चलो तो पोम स्टार्ट करते हैं। द वंडरफुल वर्ड्स। नेवर लेट द थॉट्स shrivel and die for want of a way to say it. Means never let your thought shrivel and die, मतलब आपके थॉट को कभी डाई नहीं होने देना है। श्रीवल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है श्रीवल मतलब क्या होता है? Yes, Shivani, shrivel means रिंकल। क्या होता है? रिंकल पड़ जाती है ना, रिंकल जैसा लगता है, जिसके पानी में भी रिंकल्स होते हैं ना, पानी ऐसा चलता है तो उसमें रिंकल्स होते हैं, वैसा लगता है। तो नेवर लेट योर थॉट रिंकल एंड डाई, नेवर लेट योर थॉट्स टू डाई, आपके विचारों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। फॉर वांट ऑफ वे टू से, बिकॉज देयर इज ओनली वे टू से एनीथिंग, दैट इज डिपेंड ऑन ओनली वर्ड्स, and words come from your thoughts. So never let die your thoughts, because there is only a way, that is your thoughts. Okay, आपके विचार है जो शब्दों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो never let your thoughts to die. For English is a wonderful game and all of you can play. English is a wonderful game, so you can play it. Okay, तो यहाँ पे इंग्लिश को एक वंडरफुल गेम की तरह माना गया है, दैट यू कैन प्ले, मतलब यू कैन ब्रिंग आउट योर थॉट्स बाय द लैंग्वेज इंग्लिश। मीन्स ऑल द लैंग्वेजेस आर वेरी ब्यूटीफुल, बट हियर in English looking like a game, so you can play with it, you can
bring out your thoughts by the English language. All that you do is match the word. आप जो भी करते हो that can be match your words to the brightest thought in your head. The thoughts that there are in your head, that are lying in your head, that need to bring out from the words with the help of the words. So there is only way there is only way the words that can be bring out your thoughts from your mind, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fit. So here, if you bring out your thoughts from your head, which are lying on your in your head, so if they will come out, that will come brightest thought in your head, so that they come out clear and true. अगर वो अच्छे से वर्ड के साथ मैच करके बाहर आएगी तो बहुत ही ब्राइटेस्ट होगी, बहुत ही ब्यूटीफुली बाहर आएगी, हैंडसमली और बहुत ही ट्रूली होगी. हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. फेड का मतलब क्या होता है? फेड मतलब शब्दों को यहाँ पे फेड करवाना होता है, किससे? ब्यूटीफुली थॉट्स के द्वारा. एंड ग्रूम का मतलब होता है प्रिपेयर करना. ओके, तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर. ग्रूम का मतलब है प्रिपेयर करना. एंड फेड मतलब क्या होता है? गिव फूड. तो वर्ड्स आर फेड and prepared by our thoughts, and thoughts only comes by our words. For many of the loveliest things have never yet been said. Many things are there in your mind, but they never yet been said anyone. बहुत सारे विचार होते हैं हमारे माइंड में, बट ऐसा भी कभी कभी होता है कि हम ये विचार जो होते हैं ना, वो किसी को कहते नहीं, because there is no any way to bring out your thoughts. So there is only way that are words, and with the help of words we can show our beautiful thoughts to the world. So we have beautiful language like English, and we can bring out our thoughts by the language English. And whenever you use your words to tell anyone, so they need to be groomed and fed by the beautiful and handsome words. Words are the food and race of thought. Words. What are the words? Words are for thoughts like food and race. जो वर्ड्स है वो हमारे विचारों के लिए, इसे कैसा कहा गया है? यहाँ पे फूड कहा गया है और ड्रेस कहा गया है. ओके, when we wear any beautiful dress, so our body also looking like very beautiful. We appear very beautiful with a beautiful dress. And whenever we eat healthy food, so our body also looking healthy also. Okay, our health is become very healthy. So this way words are also food and dress for our thoughts. हमारे thoughts के लिए भी शब्द जो है वो एक प्रकार का फूड भी है और ड्रेस भी है, क्योंकि हम जैसे शब्द के उच्चारण करेंगे, जैसे शब्द हम प्रोनाउंस करेंगे, अगर लोगों को वो अच्छे लगेंगे तो हमारे विचार भी लोगों को कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे. तो दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द वर्ड्स ऑफ अस. हमारे जो शब्द है उसके ऊपर ही डिपेंड है हमारे थॉट्स को कैसे बाहर लाना है. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. मतलब वर्ड्स जो है वो हमारे थॉट्स को एक बॉडी देते हैं, मतलब एक शरीर देते हैं, एक अपीयरेंस देते हैं. एंड स्विंग का मतलब वैसे तो झूला होता है, बट यहाँ पे मीनिंग हो सकता है कि आपके विचारों को अच्छे से बाहर ला सकता है. And everyone's longing today to hear some phrase and beautiful things. Everyone, we also always wanting to hear beautiful words, new things,
that is never be heard or seen, that thing we almost like. सही है ना? हमें कौन सी चीजें अच्छी लगती है जो कभी देखी नहीं हो, कभी सुनी नहीं हो, ऐसी बातें जो एकदम नई हो, फ्रेश हो, ब्यूटीफुल हो, वही हमको सुननी बहुत ज्यादा पसंद होती है. तो दैट थिंग इज गिवन हियर. एवरीवन लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है वांटिंग. Everyone wanting today to hear new things, beautiful things that we never hear by anyone. So whenever your new thoughts come in your mind, so throughout the words, you can bring it out into the world. But only words can free a thoughts. Only word is the way can free thoughts from our mind. There is only a way, and they are words. From the prison behind your eyes. Behind your eyes मतलब आंख के पीछे जो माइंड है हमारा, वहां पे जो हमारे विचार सोए हुए हैं या फिर रहे हैं, उसे बाहर लाने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज वर्ड्स. ओके, सो हियर प्रिजन मींस क्या होता है? जेल, प्रिजन. So our thoughts need to come out, bring out throughout the words into the world. So we have only a way, and they are the words that can be bring out our thoughts from our mind. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Maybe in your mind also there are so many surprising things lying in your mind, but they need to come out. So you have to bring out your thoughts to the world, for the people, with the words, with the wonderful words. And we all have new ideas in our thoughts, all have wonderful surprises in our mind, but they need to come out from. मैम जो आपने हम्म, बोलो. Maybe your mind is holding now. ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में भी अभी कोई थॉट पकड़े हुए हो आप, बट आपको पता नहीं है कि उसे कैसे बाहर निकालना है, या फिर आपको कुछ आपको पता नहीं है कि कैसे बाहर निकालना है, आपके पास वर्ड नहीं है, तो आपको एक गेम के जैसे वर्ड्स को बाहर निकालना है. यू हैव टू मैच द वर्ड्स विथ ईच अदर. अच्छे से एक दूसरे वर्ड को एक दूसरे से मिला के आप ब्यूटीफुली आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर स्कूल में. ओके, तो सरप्राइजेस आर देयर इन योर माइंड. आपके माइंड में भी बहुत सारी चीजें पड़ी है जो सरप्राइजिंग है, वंडरफुल है, बट देयर इज ओनली वे टू कम आउट. देयर आर वर्ड्स. वर्ड्स के थ्रू आउट ही वो बाहर आ सकती है दुनिया में. ओके, so here the poem, he is the wonderful word. It is written by Mary O'Neill. Okay, and one figure of speech is here in this poem. Figure of speech. तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपने सुना होगा. हैव यू हर्ड अबाउट फिगर ऑफ स्पीच? शिवानी, अनम्यूट द स्पीकर. मैम फिगर को देख के उसके बारे में कुछ बोलना है. फिगर ऑफ स्पीच, हाँ, क्या क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? कौन सी है पता है किसी को? विच आर द फिगर ऑफ स्पीच? अनम्यूट कर दो स्पीकर.
स्पीच? मैम फिगर को देख के कुछ उसके बारे में बोलना है। हाँ, तो बस फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी आपको पता है? किसी का नाम फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी नाम पता है? शिवानी? नहीं पता है? फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जो हमारे वर्ड्स को हम जितने भी हमने सेंटेंसेस लिखे या फिर कोई वर्ड्स लिखे उसे अच्छे से ब्रिंग आउट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। उसे हम अलंकार भी कहते हैं। गुजराती में अगर हम बोले, हिंदी में, तो उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार अलंकार जो होते हैं वो हमारे वर्ड्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज होते हैं, कुछ अच्छा बनाने के लिए। वर्ड्स कम लुक ब्यूटीफुल। ओके, तो वो है फिगर ऑफ स्पीच। उसमें सिमिली आते हैं, मेटाफोर आते हैं, पर्सोनिफिकेशन आता है। दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच। but in these four there is one figure of speech is given and it is सिमिली में क्या होता है ना, लाइक और एस का यूज होता है। लाइक और एस करके, जैसे कि ही फॉट लाइक अ लायन, वो लायन के जैसे लड़ा। ठीक है ना? ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो कैसा ब्रेव है? तो लायन के जैसा ब्रेव है, तो उसे लायन के साथ कंपेयर किया गया है। तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें लाइक एज ये सब यूज होता है। और हमारा जो पोम है उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच दिया है, वो है मेटाफोर। और मेटाफोर क्या होता है कि जो वो भी ऐसा ही होता है कि किसी के जैसा उसे दर्शाना है या बताना है, बट उसमें लाइक और एस का यूज नहीं होता है। ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिख रहा है कि जिसमें कंपेयर किया हो किसी के साथ? मैम कौन सा? कोई भी ऐसा वर्ड उसमें से ढूंढो पोएम में से जिसमें मेटाफोर यूज हुआ हो। मेटाफोर मींस कंपेयर करना, बट उसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता है। सीवीडी फिगर ऑफ स्पीच में एज और लाइक का यूज होता है। सेम वे यहाँ पे है, वर्ड्स आर फूड एंड प्लेस ऑफ थॉट। लिखो, वर्ड्स आर So here this is an example of metaphor. Words are the food and base of thoughts. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि words are as food and base of thought. Like words are like food and base. Like और as का यूज किए बगैर ही किसी को किसी के साथ कंपेयर किया है या फिर उसके जैसा बताया है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है उसे क्या दिखाया है? फूड बताया है। किसके लिए? थॉट्स के लिए। Same way, words is looking like grace for thought. Thoughts के लिए वो grace है और thought के लिए जो words है वो क्या है? Food भी है। तो दोनों food and grace are for thoughts. Okay, दोनों के लिए food और जो grace है words को दिखाया है thoughts के लिए। सेम वे अगर इसे सिमिली में मेटाफोर की जगह पे यहाँ सिमिली होता तो ऐसा बन सकता सेंटेंस, वर्ड्स आर लाइक फूड एंड बेस फॉर थॉट। थॉट के लिए वर्ड्स जो है वो किसकी तरह है? फूड की तरह है और बेस की तरह है। ओके, तो लाइक और ऐसे भी उसे फिगर ऑफ स्पीच में लिखा जाता है। बट यहाँ पे हमारे फॉर्म में मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच दिया है और मेटाफोर का एग्जांपल है वर्ड्स आर द फूड एंड बेस ऑफ थॉट। मेटाफोर में अगर सिंपल सेंटेंसेस लिखे तो ऐसा भी हो सकता है कि he is lion, वो शेर है। तो उसमें ऐसा नहीं दिखाता है कि वो शेर जैसा है, बट उसे डायरेक्टली बोल देते हैं
कि ये जो लड़का है या फिर ये जो मैन है वो शेर है, मतलब उसे शेर जैसा कहा है, बट जैसा कहने के लिए उसमें लाइक और एज का यूज करे बगैर ही बोल देते कई बार कि ही इज अ लायन। ओके, वो शेर है, मतलब वो शेर नहीं है, मतलब उसे डायरेक्टली बोला जाता है कि वो शेर जैसा है। तो सेम वे मेटाफर ऐसा ही होता है जिसमें लाइक और एज के यूज किए बगैर ही उसे बता देते हैं कि ये उसकी तरह दिख रहा है या फिर उसके जैसा उसमें है, कुछ थॉट्स है या फिर कुछ उसमें कुछ बात है जो अलग है सबसे। तो दैट इज द फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। So this poem is done. The wonderful words you have to write down in your English notebook. If there is any query, so you can ask. बोलो कोई क्वेरी हो तो। मैम हमें ये न्यू वर्ड्स नोटबुक में लिखने। हाँ, नोटबुक में लिखना ही है ना। And our all videos are uploaded on our YouTube channel, so you can watch all the videos from the YouTube channel also. Okay, you have to visit the YouTube channel so you can revise the lectures whenever you want. Complete, ma'am. Complete? Okay. Complete, ma'am. I will send the PDF of this poem. So you have to write down the question answer of this poem. And we will discuss the question answer also. We'll meet tomorrow with the exercise of this poem. Thank you.